व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि विविध विषयों से संबंधित जो वीडियो मैं इस पर डालते रहता हूं आप तक पहुंचे। आज हम आपके लिए लेकर के हैं इंडिया आवर मदरलैंड चैप्टर 13 SST ऑफ DAV। इन दिस चैप्टर we will study about the India, how India is a vast country and how far vast it is. We will study about the great variety of landmarks such as mountains, forests, desert, lakes, rivers, valleys and plateau, in what amount they are existing in India. We will study about the flora, fauna, climate, traditions and culture in this chapter. And after reading all such facts which is existed in India, which is found in India, we will conclude that it is this great diversity that makes India a unique country. So we will study about the uniqueness of India. We will also study about the land area, Indian states and its capitals, union territories and capitals of India, the physical features of India, and after that we will be concerned with the do you know, in which various kind of GK and fact and feature is being given, and after studying all these facts we will enrich our knowledge and we will feel pride for our country. So let us start. Why we are saying India our mother country? Because we born in India, we are the inhabitant of India, and after that we will be buried in India, or our funeral ceremony will be celebrated in India. From birth to death we are living, and we are comparing ourselves, we are comparing myself, we are comparing this country with our mother. So we may conclude that India is our motherland. It is a vast country, and whenever we are making some analysis, we are finding that a great variety of landmarks like mountains, forests, deserts, lakes, rivers, valleys and plateau are being found in this very country. It has a great variety of flora and fauna, climate, traditions and culture. Do you know what is the meaning of flora? Flora is concerned with the plant life and fauna is concerned with the animal life. In this country we are finding there is great diversity. If we are talking about its land area, we will find that it spreads over 879 kilometers from north to south, that is Kashmir to Tamil Nadu. And whenever we are talking about its land area, that spreads from Gujarat to Arunachal Pradesh, it is 3,328 kilometers. India has 28 states and 8 union territories. If we want to give name, if we would like to name that these states, we may count and we may study about these states, that is Andhra Pradesh, so far as its capital is concerned. And if we have to give its name, the listed name is the Andhra Pradesh, Hyderabad, Arunachal Pradesh, Itanagar, Assam, Dispur, Bihar, Patna, Chhattisgarh, Raipur, Goa, Panji, Gujarat, Gandhinagar, Haryana, Chandigarh, Himachal Pradesh, Shimla, Jharkhand, Ranchi, Karnataka, Bengaluru, Kerala, Thiruvananthapuram, Madhya Pradesh, Bhopal, Maharashtra, Mumbai, Manipur, Imphal, Meghalaya, Shillong, Mizoram,
आइजोल नागालैंड कोहिमा, उड़ीसा भुवनेश्वर, पंजाब चंडीगढ़, हरियाणा also चंडीगढ़, राजस्थान जयपुर, सिक्किम गैंगटोक, तमिलनाडु चेन्नई, तेलंगाना हैदराबाद, त्रिपुरा अगरतला, उत्तराखंड देहरादून, उत्तर प्रदेश लखनऊ, वेस्ट बंगाल कलकत्ता. These are the capitals of the Indian states, and so far as the union territories and its capital is concerned, we may count its name and we may remember its name. The Port Blair is the capital of Andaman and Nicobar Island. Chandigarh is the capital of Chandigarh. Daman is the capital of Dadar Nagar Haveli and Daman Diu. New Delhi is the capital of Delhi. Srinagar and Jammu is the capital of Jammu and Kashmir. Leh is the capital of Ladakh. Kavarati is the capital of Lakshadweep, and Puducherry is the capital of Puducherry. And if we are talking about the physical features of India, we may name as the northern mountain, northern plains, the Indian desert, the Deccan Plateau, the island groups. So far as the northern mountain is concerned, we are seeing the Himalayas. It is in the north side of the India. The Himalayan range stretches from the Union Territory of Jammu Kashmir in the north to the state of Arunachal Pradesh in the east. The high peaks are covered with snow throughout the year. The mountains are the source of many rivers. There are many hill stations here like Simla, Srinagar, Gulmarg, Nainital, Kullu, etc. Then come to the northern plain. Northern plain is a broad, flat, rolling land. It is fertile and hence very good in agriculture. Many industries have been set up in plains. It is thickly populated. Many holy places like Haridwar, Mathura, Allahabad, Prayag and Varanasi are also located in the northern plain. And then come to the Indian desert. The Indian desert is known as the Thar Desert. It is barren and sandy land located mostly in the Rajasthan. The area receives very little rainfall. The desert has hills of sand called sand dunes. The days are hot and night are cool in the Thar Desert. Then come to the Deccan Plateau. The Deccan Plateau is also known as the Southern Plateau. The plateau is an elevated land. It slopes from western side to the eastern side. It is triangular in shape with a rocky and uneven surface. Many rivers flow through this region. The supply water for irrigation and the dams on the rivers produce electricity. Then come to the coastal plain. India has fairly long coastline. The land near the coast is known as the coastal plain. The western coastal plain and the eastern coastal plain lie to the west and east of the Indian peninsula. The western coastal plain are narrow, the eastern coastal plain are border. Many rivers like Mahanadi and Kaveri drain into Bay of Bengal. And so far as the island is concerned, India has two groups of islands, Andaman and Nicobar Islands. They are in the Bay of Bengal in the southeast of India. It is a group of about 300 islands. Only a few of them are inhabited by people. The Andaman Islands are in the north and Nicobar Islands are in the south. These islands are hilly and have thick forests. Then come to the Lakshadweep Islands. They are in the Arabian Sea in the southwest of India. They are close to the mainland. Lakshadweep Islands are small and flat. They are only 36 in numbers. Only 10 islands are big enough for people to live on them and earn their living. Then come to the culture, dishes, dresses, languages, music and dance of the India. People in different parts of India enjoy a great diversity in dishes, dresses, languages, music and dance forms. The best features of India's culture is that in spite of the diversity, we all live in harmony with others. तो इस हिसाब से हम इसको पहले इसको पढ़ लें, इसके बाद फिर हम इस पर चर्चा करें कि भारत जो है हमारा मदरलैंड क्यों है। व्हाई इंडिया इज आवर मदरलैंड, क्योंकि हम भारत में पैदा हुए हैं, भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ है और
पूरा जीवन बिताने के बाद जब हमारा देहांत होगा तो हम इसी भूमि में समा जाएंगे। तो हम भारत के निवासी हैं, ये हम अपने इस देश की तुलना मातृभूमि से करते हैं, मदर से करते हैं, तो इसीलिए हम इसको मदरलैंड कहते हैं। ये बहुत ही विशाल देश है। इट इज़ ए वास्ट कंट्री, it is an enlarged country, it is a vast country। अब इसमें जो लैंड फॉर्म सब है, अलग अलग तरह के विभिन्न तरह के स्थलाकृति को लैंड फॉर्म को हम देख सकते हैं। पहाड़ है, जंगल है, मरुस्थल है, झील, नदी, घाटी, पठार, ये सारे स्थलाकृतियों को हम यहाँ पाएंगे। और मतलब जो फ्लोरा और फौना, जो फ्लोरा होता है कि प्लांट लाइफ इज़ कंसर्न विथ फ्लोरा, जितना तरह की वनस्पति है उसको हम फ्लोरा कहते हैं, और जितने तरह के जंतु का जीवन है, एनिमल लाइफ, उसको हम फौना में रखते हैं। तो इंडिया में हम देख सकते हैं कि बहुत ही ग्रेट वेराइटी है फ्लोरा और फौना का, तो इसीलिए हम कहते हैं इंडिया आल्सो हैज़ ए ग्रेट वेराइटी इन फ्लोरा एंड फौना। और इसके लैंड एरिया की बात करें तो कश्मीर से लेकर के तमिलनाडु तक जो इसकी लंबाई है 3879 किलोमीटर है, 3879। और मतलब जो इसके चौड़ाई की बात करें तो पश्चिम में गुजरात से लेकर के पूर्व में आंध्र प्रदेश तक इसकी जो चौड़ाई है 3328 किलोमीटर, 3328 किलोमीटर। अब इसमें 28 राज्य हैं। इनके राजधानी को मैंने अभी आपको बतलाया है, आंध्र प्रदेश हैदराबाद, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम दिसपुर, बिहार पटना, छत्तीसगढ़ रायपुर, गोया पणजी, गुजरात गांधीनगर, हरियाणा चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश शिमला, झारखंड रांची, कर्नाटक बेंगलुरु, केरला तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश भोपाल, महाराष्ट्र मुंबई, मणिपुर इम्फाल, मेघालय शिलांग, मिजोरम आइजोल, नागालैंड कोहिमा, उड़ीसा भुवनेश्वर, पंजाब चंडीगढ़, राजस्थान जयपुर, सिक्किम गंगटोक, तमिलनाडु चेन्नई, तेलंगाना हैदराबाद, त्रिपुरा अगरतला, उत्तराखंड देहरादून, उत्तर प्रदेश लखनऊ, वेस्ट बंगाल कलकत्ता, और जो केंद्र शासित प्रदेश है जिसको हम अंग्रेजी में यूनियन टेरिटरीज़ कहते हैं, तो उसके कैपिटल की बात करें तो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उसका पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़ का चंडीगढ़ ही। हम ये भी जानें कि चंडीगढ़ 2 राज्यों की राजधानी है, हरियाणा का भी और पंजाब का भी। फिर दादर नगर हवेली और दामन दीव का दामन है, दिल्ली का न्यू दिल्ली ही, जम्मू कश्मीर का जो गर्मी की राजधानी श्रीनगर है, और ये ठंडा का जम्मू, लद्दाख का है लेह, लक्षद्वीप का कवारत्ती, पुद्दुचेरी का पुद्दुचेरी ही है। इसके अलावा वर्ल्ड मैप में हम भारत की स्थिति को देखें तो हम इसको देखते हैं कि साउथ एशिया में ये एग्जिस्ट करता है। और मतलब फिजिकल फीचर की बात करें तो हम देख सकते हैं कि नॉर्दर्न माउंटेन है इसका, ये जो नॉर्दर्न माउंटेन है भारत के उत्तरी इलाका में, जो पहाड़ी इलाका है वो नॉर्दर्न माउंटेन के क्षेत्र में आता है। हिमालय रेंज के जो राज्य हैं या यूनियन टेरिटरी, जम्मू कश्मीर है, अरुणाचल प्रदेश पूर्व में हो गया, ये सब नॉर्दर्न माउंटेन एरियाज में आता है। अब इसका जो ऊंची जो चोटियां हैं वो हमेशा बर्फ़ से ढकी रहती हैं। बहुत सारे नदियों का उद्गम स्थल है, यहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, और इस इलाके में बहुत सारे हिल स्टेशन हैं। गर्मी के दिनों में लोग वहाँ जाते हैं छुट्टी बिताने के लिए। आप उसका नाम बता सकते हैं? शिमला, श्रीनगर, गुलमर्ग, नैनीताल, कुल्लू, ये सब हो गया, हिल स्टेशन हो गया। इसके अलावा माउंट एवरेस्ट, एक जीके भी पूछता है कि माउंट एवरेस्ट जो हिमालय में है उसके वो दुनिया का में सबसे ऊंचा पहाड़ी चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट। सबसे जो ऊंची पहाड़ी की चोटी है तो वो कहाँ पर है? तो भारत में नहीं है, वो नेपाल में है। इसके अलावा जो हम देखेंगे कि नॉर्दर्न प्लेन, तो नॉर्दर्न प्लेन बहुत फर्टाइल भूमि है, बहुत उपजाऊ है। यहाँ एग्रीकल्चर सबके लिए बहुत प्रसिद्ध है, बहुत सारे क्रॉप्स का फसल होता है, बहुत ही घनी आबादी भी है, थिकली पॉपुलेटेड एरिया है। इसमें बहुत सारे धार्मिक स्थल भी हैं, जैसे हरिद्वार, मथुरा, इलाहाबाद, प्रयागराज, बनारसी, ऐसे ऐसे जगह सब यहाँ हैं। और अगर हम इंडियन डेजर्ट की बात करें तो डेजर्ट का मतलब होता है मरुस्थल। तो थार जो डेजर्ट है, भारतीय जो मरुभूमि है, मरुस्थल है, उसको हम थार डेजर्ट के रूप में जानते हैं। ये ज़मीन अनुपजाऊ है। अब तो इंदिरा गांधी नहर के मदद से इसको बहुत मैंने कोशिश की जा रही है उसको उपजाऊ बनाने की। तो ये मोस्टली इसका जो भाग है वो राजस्थान में लोकेटेड है, अवस्थित है।
अब इसमें जो है बहुत कम बारिश होती है और इसमें जो बालू वाला क्षेत्र है। उसके बाद हम पठार की बात करें, भारतीय पठार की, तो डेक्कन प्लेटो जो है ये दक्षिण क्षेत्र में, तो ये जो डेक्कन प्लेटो के नाम से मशहूर है, प्रसिद्ध है। और इसका जो ढाल है वो वेस्टर्न टू ईस्टर्न साइड तक है इसका। इट स्लोप्स फ्रॉम वेस्टर्न साइड टू ईस्टर्न साइड। और इसमें जो बहुत सारे जो खनिज सब पाए जाते हैं, शेप में की बात करें तो ये ट्रायंगुलर है। और यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं उस पर जो मतलब डैम बना करके बहुत सिंचाई उचाई का काम किया जाता है। इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण भाग है कोस्टल प्लेन। तो ये तटवर्तीय इलाका है। हम देखते हैं कि भारत 3 ओर समुद्र से घिरा हुआ है, तो ये जो समुद्र तटवर्ती इलाका है इसको हम कोस्टल प्लेन बोलते हैं। ये तटवर्ती मैदान है। कोस्टल प्लेन्स का मतलब होता है तटवर्ती इलाका, तटवर्ती प्लेन। तो कोस्टल प्लेन है मैनी सी पोर्ट्स, बहुत सारे बंदरगाह है यहाँ, सी पोर्ट है जहाँ पर जहाज़ आता है और मतलब जहाँ से जहाज़ उतरता है और जहाँ से जहाज़ रवाना होता है। तो प्रसिद्ध जो बंदरगाह है, सी पोर्ट है, उसमें कंडला गुजरात, मर्मेगो पोर्ट गोवा, कोचीन पोर्ट केरला, तूतीकोरिन पोर्ट तमिलनाडु, हल्दिया पोर्ट वेस्ट बंगाल में है। तो हम देख सकते हैं कि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट भाग है भारत का। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन लाई टू द वेस्ट एंड ईस्ट ऑफ इंडियन पेनिनसुला। तो ये हम देख सकते हैं पश्चिमी जो भाग है, पश्चिमी भाग से लेकर के दक्षिण भाग तक हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को हम देख सकते हैं कि द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आर नैरो। तो वेस्टर्न जो कोस्टल प्लेन है वो थोड़ा सा नैरो है और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आर बॉर्डर, और ईस्टर्न वाला थोड़ा सा चौड़ा है। बहुत सारी नदियाँ यहाँ आकर के मिलती हैं। मैनी रिवर्स लाइक महानदी एंड कावेरी ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल। तो बहुत सारी नदियाँ यहाँ मिलती हैं। इसके बाद अंतिम में चर्चा है आइलैंड का। तो हम जानते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप जो है भारत में ये 2 ग्रुप हैं। तो हम कह सकते हैं इंडिया हैज़ 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स। तो